हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीत है और आज के वीडियो में हम ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड का फोर्थ पार्ट देखेंगे। जो 3 पार्ट मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, तो आज का जो है वो फोर्थ पार्ट होगा आज के टॉपिक का। तो वीडियो को चालू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, और है व्हाट वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज़ ब्लू, कलर ऑफ द सनसेट सनसाइज एंड सनसेट। मतलब ये पूरा हम यहाँ तक कवर कर लेंगे आज और चैप्टर को ख़त्म कर देंगे 4 पार्ट में। तो अब चालू करते हैं सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस gives rise to several spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, color of water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. In the previous class, you have learnt about the scattering of light by colloidal particles. The path of a beam of light passing through a true solution is not visible. However, its path becomes visible through a colloidal solution where the size of the particles is relatively larger. तो ये समझ में ही आ गया होगा, जैसे पिछली क्लास में भी देखा था अपन हमने कि मतलब 9th में कि द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज़ नॉट विजिबल, ऐसा कुछ हमने देखा था पिछले क्लास में भी। तो ये समझ में आ ही गया होगा। और ये ऊपर एग्जांपल्स दिए जिससे फेमिलियर है अपन, वो था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब टिंडल इफेक्ट। The Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles. These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust, and molecules of air. When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. Us. The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. The phenomena of scattering of light by the colloidal particles gives rise to Tyndall effect, which you have learned in class 9. This phenomena is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. Thus, scattering of light makes the particles visible. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. Here, tiny water droplets in a mist scatter light. तो ये मतलब ये आगे पूरा पढ़ लेना। बाकी इसमें ऐसा दिया हुआ है कि जैसे टिंडल इफेक्ट और अपन ने जैसे ऊपर स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखा, तो जैसे फिनोमिना कोलाइडल पार्टिकल्स में होता है वो टिंडल इफेक्ट को मतलब ऐसे जनरेट करता है एक तरह से, मान लो ऐसा होता है, मतलब टिंडल इफेक्ट ऐसे बन जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पूछेंगे कि टिंडल इफेक्ट में कैसे मतलब जनरेट हो सकता है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ऐसे मतलब बता सकते हैं, सिंपल ही है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। वाई इज़ द कलर ऑफ द स्काई Why is the color of the clear sky blue? The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. These are more effective when scattering light of shorter wavelengths at the blue end than light of longer wavelengths at the red end. The red light has a wavelength about 1.8 times greater than blue light. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color shorter wavelengths मोर स्ट्रांगली देन रेड। मतलब जो रेड की वेवलेंथ है वो ब्लू के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आइज एंड इफ द अर्थ हैज हैड नो एटमॉस्फियर देयर वुड नॉट बीन एनी स्कैटरिंग, देन द स्काई वुड have looked dark. The sky appears dark to passengers flying at very high altitudes. Scattering is prominent at such heights. मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब जो हाई पे मतलब ऐसे सफ़र कर रहे पैसेंजर्स जैसे फ्लाई ये एरोप्लेन में जा रहे हैं या हेलीकॉप्टर में, उनको मतलब डार्क दिखता है थोड़ा सच हाइट्स पे जैसे जाते हैं, तो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट इतनी नहीं होती है, प्रोमिनेंट नहीं है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल lights are red in color. Do you know why? The red is least scattered by fog or smoke. Therefore, it can be seen in the same color at a distance. मतलब रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए मतलब जो सिग्नल्स की लाइट है डेंजर सिग्नल्स की लाइट भी मतलब रेड होती है, ऐसा बताया गया है। अगला अब उसके बाद लास्ट टॉपिक देखते हैं, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। हैव यू सीन द स्काई एंड the sun at sunset or sunrise? Have you wondered as to why the sun and surrounding sky appears red? Let us do an activity to understand the blue color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset. तो ये एक्टिविटी पढ़ लेना। मैं एक्टिविटी ज़्यादा समझाता नहीं हूँ इसलिए अभी भी नहीं समझा रहा हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और समझ में भी आ जाएगी, अच्छे से पढ़ लेना। थोड़ा बहुत मैं पढ़ देता हूँ। ये व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब ये ऑब्जर्वेशन नीचे दिया वो पढ़ लेते हैं। You will find fine microscopic sulfur particles
precipitating in about 2 to 3 minutes as the sulfur particles begin to form. You can observe the blue light from the three sides of the glass tank. This is due to scattering of short wavelengths by minute colloidal sulfur particles. Observe the color of the transmitted light from the fourth side of the glass tank facing the circular hole. It is interesting to observe at first the orange red color and then bright crimson रेड कलर ऑन दी स्क्रीन. ये ऐसा इधर एक्टिविटी के अंदर ही है. अब एक ये इधर देख लेते हैं लास्ट पैराग्राफ में. ये एक्टिविटी के बारे में दिया है ऊपर तो, और नीचे वाला देख लेते हैं. हाउएवर द लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस. एट मून द सन appears white as only a little of the blue and violet colors are scattered near the horizon. Most of the blue light and shorter wavelengths are scattered away by the particles. Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelengths. This gives rise to reddish appearance of the sun. सिंपली यही है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ये देख के भी समझ सकते हैं. और ये ऑब्जर्वर है, जैसे ये सन नियर हॉरिजॉन है, ये सन नियरली ओवरहेड है, ये लेस ब्लू स्कैटर्ड है, ये ब्लू स्कैटर्ड अवे, सन अपीयर्स रेडिश. तो ये सिंपल ही इधर. तो अब चैप्टर ख़त्म ही हो गया लगभग. इधर जैसे क्वेश्चंस दिए MCQ टाइप है, इधर 4 क्वेश्चंस MCQ टाइप है, फिर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए थोड़े बहुत सॉल्व करने के हैं, और कुछ थ्योरी के भी नीचे, तो वो कर लेना. और नहीं आए तो नीचे बता ही देना कमेंट में. और एक ये व्हाट डू यू हैव लर्न, ये पॉइंट्स पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं. और अगर जैसे अभी ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं स्कूल के, कोचिंग के, तो वहाँ पे जैसे MCQ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, तो उसके लिए मेरे पास लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस है, ऐसी लिस्ट बनी हुई है एक बुक में. तो उसको मैं फ़ोटो खींच के PDF बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके एक मतलब सैम्पल पेपर जैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो ये फ्री में ही है, कुछ मतलब पैसे वैसे नहीं है इसमें, सब फ्री में ही है ये. तो वो आप डाउनलोड कर लेना, मैं नीचे PDF में लिंक दे दूँगा. बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब आते हैं उसमें से भी, तो अच्छा ही होगा. और बाकी वीडियो को लाइक करना. और अगर ये एक्सरसाइजेस में नहीं कराऊंगा तो इसमें मतलब जैसे डाउट आ रहा हो तो नीचे कमेंट में बता देना. ये तो सब लिख ही लेंगे यहाँ पे लिखे हुए सब. और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू. ¿Cómo se llama?